السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے پرائم ٹائم میں آپ سب کا تہدید سے استقبال ہے۔ میں ہوں فرزان احمد۔ سب سے پہلے پیش ہے پرائم ٹائم کی ہیڈ لائنز۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی، آئی ٹی وزیر ڈی سریدر بابو اور مرکزی وزراء نے ڈاوس میں ہندوستان پویلین کا کیا افتتاح۔ تلنگانہ مرکز کی معیشت میں ادا کرے گا اہم رول، ریونت ریڈی کا بیان۔ مجلس کے صدر رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسد اویسی نے یونیفارم سول کوڈ کی وکالت کو مسترد کر دیا۔ وفد کے مجوزہ قانون پر بھی کی سخت تنقیدیں۔ بی آر ایس لیڈر اور سابق وزیر تاراسانی سریواس یادو کی رہائش گاہ پر گریٹر حیدرآباد بی آر ایس ارکان اسمبلی کا اجلاس، کے ٹی آر کی صدارت۔ میئر جی وجے لکشمی کے خلاف تحریک عدم اعتماد سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے مودی حکومت کی ترقیاتی پالیسیوں پر اٹھائے اہم سوال، کہا محنت عام آدمی کرتا ہے اور اس کی محنت کا فائدہ کوئی اور اٹھاتا ہے، جی ایس ٹی پر بھی کی تنقیدیں۔ غزہ میں جنگ بندی کا معاہدہ، بہت سے چیلنجوں کے باوجود امید کی کرن، اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس کا رد عمل۔ اور امریکی صدر کے طور پر ڈونالڈ ٹرمپ کے حلف اٹھانے پر عالمی رہنماؤں نے دی مبارکباد، ٹرمپ کا دوسرا دور پوری انسانیت کے لیے اچھا ثابت ہو، ترکیہ کے صدر اردگان کا رد عمل۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیلات۔ شروعات کریں گے بڑی خبروں سے۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی، آئی ٹی کے وزیر ڈی سریدر بابو، مرکزی فوڈ پروسیسنگ وزیر چراغ پاسوان، مرکزی وزیر اسکل ڈیولپمنٹ جینت چودھری، کیرالہ کے ریاستی وزیر صنعت و قانون پی راجو نے ورلڈ اکنامک فورم ڈاووس میں انڈین پویلین کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر تلنگانہ پویلین میں ریاست کے حکام نے سرمایہ کاری کے حوالے سے تفصیلات بتائی۔ دونوں مرکزی وزراء نے اسکل ڈیولپمنٹ اور فوڈ پروسیسنگ میں مختلف ریاستی اقدامات کے لیے بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ تلنگانہ کی جانب سے ہندوستانی معیشت کے لیے اگلے 5 سالوں کے دوران $1 ٹریلین کے تعاون کا بھی اس موقع پر یقین دلایا گیا۔ اور اس سے قبل زورچ ایئرپورٹ سے چیف منسٹر ریونت ریڈی اور ریاستی وزیر ڈی سریدر بابو نے ڈاووس تک ریلوے میں سفر کیا۔ ورلڈ اکنامک فورم کے اجلاس میں شرکت کے لیے تلنگانہ کا وفد ڈاووس کے دورے پر ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ریلوے سفر کے یہ مناظر۔ چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی، آئی ٹی اور صنعت کے وزیر ڈی سریدر بابو اور تلنگانہ رائزنگ وفد کے عہدیداروں نے یونیلیور کے سی ای او اور دیگر مختلف حکام اور کمپنیوں کے نمائندوں سے بھی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ تلنگانہ میں سرمایہ کاری اور تجارت کے مواقع کے حوالے سے اس موقع پر ریاستی وزیر سریدر بابو نے بیان بھی دیا۔ First time for the new government under the leadership of Mr. Revanth Reddy, we have been here. We were quite successful in getting investment to our state. As our state reflects, the state of Telangana reflects, the image of Telangana reflects in technology side, in terms of bio tech areas, and also in terms of agro processing. And under the supervision and the guidance of our Chief Minister, we are concentrating on skill development at the highest level. So these are the 4 priority areas, and this time we would like to see more of alternative energies sector. So this is the areas where we are concentrating, and we would like to really explore about the disruptive technologies and the emerging technologies and the cutting edge technologies which we will be the leaders for tomorrow. And as everybody knows, in terms of pharma and life sciences, we cater to about 33% for the vaccine production for the world. And in terms of agro and agro-related, agro-processing too, we are ranked number 2 and number 3. And taking the cue from the last year's experiences, we are here to stand by with the help of our Government of India, with the great collaboration what they are extending. We would like to raise and see that we grow, our nation grows, and under the leadership of our Chief Minister, we would like to see مجلس کے صدر رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسد اویسی نے چند گوشوں سے یونیفارم سول کوڈ کی وکالت کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہر مذہب کے ماننے والوں کو ملک میں آزادی حاصل ہے اور صرف مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے یونیفارم سول کوڈ کی باتیں کہی جا رہی ہیں۔ اسد اویسی نے کہا کہ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ نے پہلے ہی وفد کے مجوزہ قانون کو ٹھکرا دیا ہے۔ انہوں نے بھی کہا کہ مسلمان اپنے مذہبی معاملات میں کسی مداخلت کو بھی برداشت نہیں کر سکتے۔
इसको यूसीसी नहीं बोल सकते आप। हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट को एक्सेप्शन दे रहे आप, ट्राइबल्स पे लागू नहीं होगा। कहाँ का यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये? आप सिर्फ मुसलमानों को उनके मजहबी तरीके से शादी या डिवोर्स या फिर जायदाद का बंटवारा उसको रोक रहे हैं। तो कहाँ है यार? आप तो हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट में तो लागू नहीं हो रहा। और ये झूठ बोल रहे हैं। इस देश में ऑलरेडी अगर आप अपने रिलीजन के कानून के तहत कोई चीज नहीं करना चाह रहे तो आपके पास स्पेशल मैरिज एक्ट है, इंडियन सक्सेशन एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, उसको इस्तेमाल करिए ना। और ये बात हमको समझ में नहीं आ रही कि हिंदू अनडिवाइडेड टैक्स रिबेट जो मिलता है, 2 साल पहले 1700 करोड़ का टैक्स रिबेट मिला, वो क्यों नहीं मिलता मुसलमानों को, ईसाइयों को? ये तो राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। और आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, मगर कोई अपना मजहब हिंदुइज्म से चेंज करता है तो उसको परमिशन लेना पड़ता है। तो कहाँ का यूनिफॉर्म सिविल कोड हुआ ये? सर, कहीं ना कहीं ये जो वक्फ एक्ट है वो सीधे तौर पे मुसलमानों से जुड़ा हुआ है। देश के मुसलमान क्या चाहते हैं? वो ये जो एक्ट है वो लागू होना चाहिए। कौन सा एक्ट? वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। नहीं, देखिए, जहां तक हम जानते हैं, मुसलमानों का एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसमें मुसलमानों के मुख्तलिफ मसलक और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन, सोशल, रिलीजियस सब हैं। सब ने उसमें पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसको रिजेक्ट किया है। और सब ये कह रहे हैं कि 2013 का जो कानून है वो बेहतर है, जो प्रिंसिपल एक्ट है। आज आप कोई कानून ला रहे हैं तो वक्फ की इस जायदाद को बचाने के लिए नहीं, वक्फ की जायदाद को बर्बाद करने के लिए ला रहे हैं। आप बताइए कि बंजारा फंक्शन हॉल हैदराबाद में ख़वातीन की कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें उलमाए कराम और मुख्तलिफ दानिश्वर और अहम शख्सियात ने इस इजलास से खिताब किया। ख़वातीन की कसीर तादाद इस इजलास में मौजूद थी। BRS लीडर साबिक वज़ीर तारसानी श्रीवास यादव की रिहाइशगाह पर ग्रेटर हैदराबाद BRS अरकान असम्बली की मीटिंग हुई। इस मीटिंग की निगरानी BRS के कारगुजार सदर KTR ने की। ग्रेटर हैदराबाद में पार्टी सरगर्मियों, GHMC मेयर विजय लक्ष्मी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद और दीगर मसाइल पर भी इजलास के दौरान तबादले ख्याल किया गया। इस मीटिंग में BRS MLC महमूद अली और दीगर पार्टी कायदीन ने भी शिरकत की। तेलंगाना BJP के हल्का मलकाजिरी के रुकने पार्लिमान ईटा राजेंद्र ने रियल एस्टेट ब्रोकर को सरेआम तमाचा लगा दिया। रुकने पार्लियामेंट ने जिले के पोचारा म्यूनसिपलिटी के एक शिलानगर इलाके का दौरा किया, जहां एक रियल एस्टेट ब्रोकर की जानिब से मुबैना तौर पर गरीबों की ज़मीनों पर कब्जा करने और उनको मुश्किलात में डालने की शिकायत सामने आई। इस पर राजेंद्र ने गुस्से में आकर रियल एस्टेट के कारोबारी पर हमला कर दिया। इस दौरान MP के हामियों और मुतासिरीन ने सब मिलकर रियल एस्टेट ब्रोकर की पिटाई कर दी। నేను 6 నెలలు అవుతుంది భారతీయ జనతా పార్టీ ఎంపీకి ఇక్కడ గెలిచి 6 నెలల నుంచి ప్రతినిత్యం కూల్చివేతల బాధలు తప్ప, పేదల కన్నీళ్లు తప్ప, నా ఇండ్లు కూలగొడుతున్నారు, నా జాగలు గుంజుకుంటున్నారు, నేను కాంపౌండ్ వాల్ కడితే కూడా గుండాలు బెదిరిస్తున్నారు, మా కాలనీలలో కిరాయి గుండాలు లిక్కర్ సీసాలు తెచ్చుకొని తాకుండా మా మీద దౌర్జన్యం చేస్తున్నారు. ఎటుపోతుంది సారు ఇది? ఇంత పెద్ద విశ్వనగరం అని చెప్తా ఉన్నారు, ఇంత గొప్ప పోలీస్ అని చెప్తా ఉన్నారు, పేదల ప్రాణాలకు రక్షణ లేకుండా పోతుందని చెప్పి కన్నీళ్లు పెడతా ఉన్నారు. నిన్న నా దగ్గరికి ఏకశిలా నగర్ కాలనీ వాసులు వచ్చారు. 1985, ఇవాళ కాదు నిన్న కాదు, 1985 ఆనాడు ఇక్కడ ఎకరం 10,000 రూపాయలు 5,000 రూపాయలకి ఎకరం ఉండే. ఇక్కడ ఆనాడు రియల్ ఎస్టేట్ వాళ్ళు ప్లాట్ చేస్తే కొనుక్కున్నారు. వాళ్ళు అందరూ కూడా రెవెన్యూ ఉద్యోగులు ఉన్నారు, ఇలా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేసే వాళ్ళు ఉన్నారు, రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీసులో పనిచేసే వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇలా 32 డిపార్ట్మెంట్లలో పనిచేసేటువంటి ఆనాటి చిన్న ఉద్యోగులు ఇక్కడ జాగాలు కొనుక్కున్నారు. ఇవాళ ఆ జాగాలు ఇక్కడ ఇల్లు కట్టుకుందామంటే ఆనాడు దొంగల భయం కాబట్టి, రాళ్ళు రప్పలున్న గుట్టల భూములు కాబట్టి, చెట్లు కంచెలున్న భూములు కాబట్టి సెక్యూరిటీ భయపడి ఆనాడు కట్టుకోలేదు. మెల్లమెల్లగా జాగాల ఖరీదు పెరుగుతున్నప్పుడు, వాళ్ళకు 4 పైసలు జమ అవుతున్నప్పుడు ఇల్లు కట్టుకునే ప్రయత్నం చేసి కొంతమంది ఇల్లు కట్టుకున్నారు. ఇవాళ ఇల్లు కట్టుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ
మొన్న కొత్త గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత మొన్నటి వరకు పాలక మండలి గ్రామ పంచాయతీ ఉన్నంత వరకు మున్సిపాలిటీ ఉన్నంత వరకు వాళ్ళకి పర్మిషన్లు వచ్చినాయి. కానీ కొత్త जीएचएमसी इन्फोर्समेंट विंग की टीम ने रोड नंबर 36 जुबली हिल्स इलाके हैदराबाद में जीएचएमसी अराजी पर गैरकानूनी तामीरात को आज ढा दिया। जीएचएमसी के मेयर ने शख्सी तौर पर सरकारी अराजी पर किए गए कब्जे को बर्खास्त कराने के अमल की रास्त तौर पर निगरानी की। इससे कबल जीएचएमसी मेयर गदवाला विजय लक्ष्मी ने जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन के पीछे लगभग 60 करोड़ रुपए मालियत की 1500 तक 2000 स्क्वायर गज जगह का मुआयना किया था, जहां जीएचएमसी का मौजूदा साइन बोर्ड हटा दिया गया और गैर मजाज अंदाज में यहां सब्जियों की काश्त की जा रही थी। विजय लक्ष्मी ने इस मामले को लेकर सख्त बरहमी का इजहार किया। इदारे सियासत के मिल्लत फंड की जानिब से लावारिस मुस्लिम नाशों की तदफीन का सिलसिला जारी है। 2003 में इस कार्य खैर की शुरुआत की गई थी। ताहल 5900 मैयतों की तदफीन अमल में लाई जा चुकी है। इस हवाले से कार्य खैर में हिस्सा लेने वालों ने सियासत से बातचीत करते हुए तफसीलात से आगाह किया। जो मुस्लिम मैयतों की तदफीन का अहतमाम किया जा रहा है, ये आली जनाब जाहिद अली ख़ान साहब और आमिर अली ख़ान साहब की हिदायत पर होता है। यह मुस्लिम नाशे 2003 से इन नाशों की तदफीन का आगाज़ शुरू हुआ और अल्लाह पाक के फजल व करम से आज तक तकरीबन 5900 मुस्लिम नाशों की तदफीन इस्लामी तरीक़े पर हुई। इससे क़ब्ल इन मैयतों को जला दिया जाता था। जब इसकी इत्तला अली जनाब जाहिद अली ख़ान साहब को हुई तो आपने इस तरफ तवज्जो फरमाई और नतीजा ये हुआ कि यह मुस्लिम नाशें जलने से बच गई। अज़ीज़ान मोहतरम, इसमें मिल्लत फंड का बहुत बड़ा साथ है इदारे सियासत के साथ, और साथ में उम्मत मुस्लिमा की दुआएं हैं, जो दुआएं मुख्तलिफ मुकामात पर होती हैं। कभी मक्के शरीफ में इनके लिए होती हैं, कभी मदीने में होती हैं, कभी ख़ुद इमाम साहब नमाज जनाजा पढ़ा कर करते हैं। इस तरह एक आम आदमी को इतनी दुआएं नसीब नहीं होती जितनी कि इन मरहूमीन को होती है। मौजूद सामीन व नाजरीन, रोज़नामे सियासत के मिल्लत फ़ंड के ज़ेर एहतमाम 21 जनवरी 2025 को उस्मानिया हॉस्पिटल और गांधी हॉस्पिटल में जुमला 23 लावारिस लाशों की नमाज जनाजा का एहतमाम और तजहीज़ व तकफ़ीन का एहतमाम किया गया है। और अभी उनकी नमाज जनाजा मौलाना अब्दुल हफीज़ साहब ख़तीब व इमाम जामा मस्जिद मोहम्मदी किशन बाग ने इमामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। और इससे मिल्लत फ़ंड की जो खिदमात रोज़नामे सियासत की हैं और उसके जो अहबाब हैं, उन सब का हम शुक्रिया अदा करते हैं। और जिन लोगों ने शिरकत की है उसमें ख़ास करके मोहम्मद अकरम साहब, सैयद मोहम्मद अकरम साहब फाजिली और दीगर अहबाब ने दूर दराज से इतनी सुबह सुबह यहाँ शिरकत की है। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुल्क की मशहूर कंपनी विप्रो की जानिब से स्मार्ट लाइटिंग की शुरुआत की गई है। इस सिलसिले में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया और विप्रो के मंसूबों और हैदराबाद में इस सिलसिले में की जा रही पहल के हवाले से तफसीलात बताई गई। Today we are inaugurating our first Wipro My Verse Experience Center. It is in Hyderabad, and Hyderabad we have chosen because we have a large presence in Hyderabad market. This is a space which will help our customers to see and feel the lighting and the seating solutions which we offer to help the productivity improvement of their employees. So the whole idea is how do we help them create spaces or co-create spaces for their employees, for their workspaces, which will help them to grow their business. So that is where we add value. We work with architects, consultants and the end customers to provide all these solutions to them. We are showcasing the latest IoT based lighting solutions here, including the latest designs, the award winning design products. We have won lots of awards, international awards, and also the entire range of seating solutions, which is for offices,
for the task chair, for boardroom, conference rooms, auditorium seating, soft seating, telephone booth solutions, and acoustic-based solutions for our customers. So this is what we are showcasing here, and we would be getting all our leading architects and customers to visit and see this experience center in Hyderabad. And we plan to open many more experience centers across the country now after this. चिंतल बस्ती खैरताबाद हैदराबाद इलाके में जगह जगह कचरे के अंबार पड़े हुए हैं, जिससे आम लोगों को आमदोरफ्त में संगीन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे नुमाइंदे शेख निज़ामुद्दीन लईख ने इस इलाके का दौरा किया और कहा कि बल्दी हुकाम को इस जानिब फौरी तवज्जो देने और इक़दामात की ज़रूरत है। सड़कों पर कचरा डाल देने से सड़क की जगह भी तंग हो गई है और इससे ताफुन और बीमारियाँ फैलने का भी ख़तरा लगा हुआ है। शहरियान हैदराबाद ने इस मामले को लेकर अपनी जानिब से गहरी फ़िक्रमंदी का इजहार किया। शहर हैदराबाद के मुज़ाफ़ाती इलाक़े शमसाबाद में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स शदीद ज़ख्मी हो गया। हादसा आज सुबह शमसाबाद के हैदराबाद मंगल कौमी शाहराह पर उस वक्त पेश आया जब एक तेज़ रफ्तार प्राइवेट बस ने कार को टक्कर दे दी। शुबह की लापरवाही की वजह से यह हादसा पेश आया। वाक़या उस वक्त पेश आया जब कार तोड़पल्ली से हैदराबाद की जानिब जा रही थी। पुलिस के मुताबिक कार जब करीब पहुँची तो इसी सिम से जा रही बस ने पीछे से कार को टक्कर दी। टक्कर की वजह से कार डिवाइडर से जा टकराई, जिसमें गाड़ी का ड्राइवर ज़ख्मी हो गया और गाड़ी को शदीद नुकसान पहुंचा। हादसा इतना खतरनाक था कि ड्राइवर कार के कैबिन में लगभग 1 घंटे तक फंसा रहा। डोबरा नामी तंजीम की जानिब से हैदराबाद की मशहूर कुल हिंद सनती नुमाइश में मुअम्मर और बुजुर्ग शहरियों के लिए खिदमात फराहम की गई। स्कूली तलबा यानी वॉलंटियर्स ने नुमाइश में ट्रेन में सवार होने और बुजुर्ग शहरियों को नुमाइश का मुशाहिदा कराने में शख्सी तौर पर मदद फराहम करते हुए कार खैर का काम अंजाम दिया है। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने हुकूमत की तरक्याती पॉलिसियों पर सवाल उठाया और कहा कि मोदी हुकूमत की पॉलिसी में आम आदमी मेहनत करता है, मेहनत का फ़ायदा कोई और उठाता है। राहुल ने कहा कि मोदी जी के विकसित भारत की हकीकत मेहनत आपकी, मुनाफा किसी और का। आप सब के खून पसीने से मुल्क की मईशत का पहिया चल रहा है, लेकिन क्या आपको इसमें मुनासिब हिस्सा मिल रहा है? ज़रा सोचिए। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की मईशत में हिस्सेदारी 60 साल की सबसे निचली सतह पर आ गई। लोगों को रोज़गार के लिए जिद्दोजहद करना पड़ रहा है। ज़राअत के शुबे में गलत पॉलिसी से किसान और खेत मजदूर की हालत ख़राब है। वो बमुश्किल अपनी गुजर बसर कर पा रहे हैं। पिछले 5 साल में मजदूरों की हकीकी आमदनी या तो मुस्तहकम या कम हुई। उन्होंने जीएसटी और महंगाई पर भी हुकूमत पर तनकीदें की और कहा कि मुज़ीद जीएसटी और इनकम टैक्स की मार ने गरीब और मिडिल क्लास का जीना मुश्किल कर दिया है, जबकि कारपोरेट का कर्ज माफ़ किया जा रहा है। आसमान छूती महंगाई की वजह से न सिर्फ गरीब बल्कि सैलरी क्लास भी अपनी ज़रूरतों के लिए कर्जे लेने पर मजबूर हो गई है। कांग्रेस पार्टी की जानिब से बेलगावी कर्नाटक में जय बापू जय भीम जय दस्तूर के उन्वान पर महारैली मुनक़िद हुई। कांग्रेस सदर और दीगर कायदीन ने इसमें खिताब किया। इस मौके पर कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि इस वक्त दस्तूर की तौहीन की जा रही है। बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ नामुनासिब तबसरे किए जा रहे हैं, जिसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी आवाज़ बुलंद कर रही है। आज हम बेलगावी वापस लौट आए हैं। 26 दिसंबर को नव सत्याग्रह बैठक हुआ था, ऐतिहासिक बैठक था, क्योंकि उसी जगह को ठीक 100 साल पहले 26 दिसंबर 1924 को महात्मा गांधी जी कांग्रेस अध्यक्ष बने 1 साल के लिए। वहीं हमारी बैठक हुई, कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक। और आज गांधी जी की मूर्ति का अनावरण जो हुआ है वो 27 दिसंबर को होना था, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह का देहांत का खबर हमें 26 रात को ही मिल गया था। वो कार्यक्रम स्थगित किया गया। तो आज बेलगावी में जय बापू जय भीम जय संविधान का एक महारैली का आयोजन किया गया है। 27 तारीख को डॉक्टर अंबेडकर के जन्मभूमि मऊ में यही जय बापू जय भीम जय संविधान एक और रैली वहां आयोजित किया जाएगा। देखिए, आज मोहन भागवत जी गांधी जी का अपमान कर रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर का अपमान हो रहा है पार्लियामेंट के अंदर। गृह मंत्री ने अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है और रोज प्रधानमंत्री के द्वारा हमारे संविधान पर, संवैधानिक मूल्यों पर, संवैधानिक प्रावधानों पर, संवैधानिक सिद्धांतों पर और संवैधानिक संस्थाओं पर आक्रमण हो रहा है। एक व्यवस्थित आक्रमण हो रहा है। इसीलिए
तेलंगाना कांग्रेस की नुमाइंदगी करते हुए बेलगावी इजलास में डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना भट्टी विक्रमारक ने भी शिरकत की और मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दस्तूर हिंद के तहफ़्फ़ुज़ और महात्मा गांधी के साथ साथ बाबा साहब अम्बेडकर की मुल्क के लिए नाकाबिले फरामोश खिदमात की यादें ताज़ा कर रही है। जय भीम, जय संविधान, which is taking place here in Gangam. This is really good. This program to be taken in the country by the Congress Party. Belgaum is an historical place where Mahatma Gandhi has become the president of All India Congress Committee 100 years back. In remembrance of him, that the All India Congress Committee organizing this meeting. We are all fortunate enough to take part in this meeting. अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि गजा में जंगबंदी का मुआहदा बहुत से चैलेंजों के बावजूद उम्मीद की किरण है, क्योंकि यूएन इंसानी बुनियादों पर कार्रवाइयों की तेज़ी से तोसी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम कर रहा है। गुटेरेस ने फ़लस्तीन के मसले पर यूएन की सलामती कौंसिल के खुले इजलास में कहा कि इंसानी इमदाद से लदे 630 से ज़्यादा ट्रक गजा में दाखिल हुए। उन्होंने गजा में एक मुस्तकिल जंगबंदी को ज़मीनी तौर पर नाफिज करने के लिए ज़ोर दिया और कहा कि यूनाइटेड नेशंस के इदारे बशमूल इंसानी हमदर्दी के इदारे बगैर किसी रुकावट के अपने काम अंजाम देने की कोशिश में हैं। उन्हें ज़रूरी इमदाद और ख़िदमात की फराहमी को महफूज बनाने का मौका दिया जाए। गुटेरेस ने कहा कि मगरबी किनारे में झड़पों, फ़िज़ाई हमलों और बस्तियों की जारी गैरकानूनी तोसी और घरों को ढाने की वजह से हालात ख़राब हुए। उन्होंने गजा और मगरबी किनारे में मकबूजा फ़लस्तीनी सरज़मीन की सालिमियत और उसके वजूद को लाहक ख़तरात के बारे में गहरी फ़िक्रमंदी का इजहार किया है। अमरीकी सदर के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के हलफ उठाने पर आलमी रहनुमाओं ने मुबारकबाद दी है। तुर्क रहनुमा अर्दोगान ने कहा कि ट्रंप ने बारहा कहा कि वो रूस यूक्रेन जंग ख़त्म करेंगे, इसलिए हम बतौर तुर्किया इस सिलसिले में जो भी ज़रूरी ताउन हो करेंगे। हमें इस मसले को जल्द हल करने की ज़रूरत है। ट्रंप के साथ हमारी बातचीत के दौरान ये मसला हमारे एजेंडे पर रहेगा और हम इसके मुताबिक अपने इक़दाम करेंगे। उनकी ख्वाहिश है कि ट्रंप का दूसरा दौर पूरी इंसानियत के लिए अच्छा साबित हो। उर्दून के शाह अब्दुल्ला दुअम ने भी ट्रंप को मुबारकबाद दी और कहा कि हम अमेरिका के साथ अपनी शराकत दारी की कदर करते हैं और एक खुशहाल और पुरअमन दुनिया के लिए काम करने के लिए वाबस्ता हैं। याद है कि ट्रंप की हलफबरदारी शदीद सर्दी की वजह से इंडोर मुनक़िद हुई। आइए देखते हैं इस तकरीब की चंद झलकियाँ। और अब आखिर में बात करेंगे सैफ अली खान के बारे में। मशहूर अदाकार सैफ अली खान को आज मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया और वो अपने घर पहुंच गए। अदाकार पर 16 जनवरी की सुबह कातिलाना हमला हुआ था, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने आज कहा कि सैफ अली खान की हालत बेहतर है और उन्हें मज़ीद इलाज के लिए हॉस्पिटल में रहने की ज़रूरत नहीं। डॉक्टरों ने कहा कि अगर उनके अरकान ख़ानदान घर ले जाना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है। जिसके बाद सैफ अली खान को घर ले जाने के इंतज़ाम किए गए और सैफ अली खान की अहलिया करीना कपूर ने सख्त सिक्योरिटी के बीच उन्हें घर पहुँचाया। उनके घर पर भी सिक्योरिटी इंतजामात सख्त कर दिए गए और अहम मकामात पर CCTV कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नजर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, IT वजीर D श्रीधर बाबू और मरकजी वज़रान ने डाउस में हिंदुस्तान पवेलियन का किया इफ्तिताह। तेलंगाना मरकज की मईशत में अदा करेगा अहम रोल, रेवंत रेड्डी का बयान। मजलिस के सदर रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असद ओवैसी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत को मुस्तरद कर दिया। वफ़ के मुजवदा कानून पर भी की सख्त तनकीदें। BRS लीडर और साबिक़ वज़ीर तारासानी श्रीवास यादव की रिहाइशगाह पर ग्रेटर हैदराबाद BRS अरकान असम्बली का इजलास, KTR की सदारत। मेयर G विजय लक्ष्मी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद समेत दीगर उमूर पर तबादले ख्याल। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत की तरक्याती पॉलिसियों पर उठाए अहम सवाल। कहा मेहनत आम आदमी करता है और उसकी मेहनत का फ़ायदा कोई और उठाता है। GST पर भी की तनकीदें। गाज़ा में जंगबंदी का मुआहदा बहुत से चैलेंजों के बावजूद उम्मीद की किरण। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का रद्द-ए-अमल। और अमरीकी सदर के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के हलफ उठाने पर आलमी रहनुमाओं ने दी मुबारकबाद। ट्रंप का दूसरा दौर पूरी इंसानियत के लिए अच्छा साबित हो, तुर्किया के सदर अर्दोगान का रद्द-ए-अमल। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।